Sat Shri Akal, Rajveer. My Diwali was very good. How was all of you? Did you enjoy your Diwali? Yes. Gudi Padwa, probably. Good. Good. Very nice. Welcome all of you. Bhagwan Kare, next Diwali, you're clearing your mains exam. Okay, your interview also. Happy Diwali. Without crackers. Absolutely without crackers. Yes. That is the least you can do for this nature that you destroyed. Acha, green crackers. Lovely. Good. मेरा प्लान था कि कल मैं I should have the class and only say Happy Diwali and then shut off the class. Then I thought, नहीं यार, maybe it destroys one entire class. So I did not take a chance. All right, lovely. Awesome. Very nice. Okay, Sherpal. Okay, good. New topic, my friend. New topic. Everything. Ordinary bills हमने last time कर लिया था. Okay. And we had done joint sessions. We had done. Thank you, Nikhil. Thank you. God bless, बच्चे. God bless. कोई doubt है बच्चे? Happy Diwali to all of you, my friends. All of you. Happy Diwali. God bless you all. Happy Diwali. Yes, Neelam, we have done in the previous course. अगर आपको rest करना है, might as well take some rest. Delhi useless city. अभी भी लोग पटाखे बजा रहे हैं शेर पर. Okay. We are going to kill each other. Ziddi city है. Lawless city. अभी भी people are doing this. Thank you, Nikhil. Is it possible to take classes from 1900 hours? So let me think about it, Devendra. Okay, मैं कोशिश करूँगा, but I'm not too sure. Okay, but I can't promise, but if मैं try करूँ. हाँ, Devendra. Okay. See, this is what is called as illogical demand. एक time पर people demand कि pollution now, and then they start discussing this. So they start doing all this. अच्छा, ठीक है, Devendra. I'll just think about it. Okay, I'll just think about it. I won't think about it. I'll have to discuss it with the team here. Okay. Thank you very much. Good evening, everyone, my friends. Okay. Chalo, can we get back to the business? Right, all of you. Push Sherpal, if you have any doubt, push. आज का टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक. Okay, we are going to do money bills. Hello everyone. Sherpal, I'm waiting for your question, बच्चे. जल्दी से पूछ लो ताकि we get down to business. Okay, I'll do passing of budget today. Kishore is asking. Question तो कहीं और सा है. Indian Constitution and IPC. बेटा IPC is Indian Penal Code, my friend. ये law है अलग से. Okay. Indian Penal Code is a book of crimes. What are crimes, etc. वो एक book है. Indian Constitution तो is a source of law. Those जो लोग भी join कर रहे हैं, okay, I'll be very clear on this part. You are free to join, but मुझे नहीं लगता it will be much use to you unless you watch the previous videos. सारे videos watch करके आओ, notes बनाओ, revise करो, then and then only you will be able to join. Okay, then I have no problem. Verma, I watched your previous lectures and this is my first class. Live doubt is as per 24th Constitution should sign, but no specific time limit can be used for the veto. Constitutional Amendment Bill, there is no concept of veto, my friend. Very good, Siddharth. That's good. सर हम बहुत लोगों को डाउट है आर्टिकल 249 प्लीज इसमें समझा दीजिए जिसमें आपने इमरजेंसी बोला था लेकिन आर्ट में ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है. बेटा नेशनल इंटरेस्ट है ना, नेशनल इंटरेस्ट वर्ड यूज किया जाता है. इमरजेंसी मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं था, मेरा मतलब नेशनल इमरजेंसी वगैरह नहीं था, मेरा मतलब था अर्जेंसी. उसको जैसा मर्जी समझ लो. नेशनल इंटरेस्ट में वर्ड इज नेशनल इंटरेस्ट. ओके, आर्टिकल 249 में if the Rajya Sabha feels that in national interest it is required for the parliament to form a law, okay, then the parliament can do it. Yes, Rajya Sabha will allow the parliament to make a law. देखो, it is like a Rajya Sabha is the door. Okay, Rajya Sabha 2/3 present and voting से allow करेगा and then the parliament can make a law on this. ठीक है. अच्छा, I'm a top educator in an academy. ये कब हुआ? मुझे पता ही नहीं चला. Good.
अच्छा 9th रैंक, ओके, मुझे लगा टॉप, नो प्रॉब्लम, तुम लोग हो जाओ टॉप, थैंक यू, ओके। अरे बाबा ये डाउट सेशन नहीं है यार अच्छा ठीक है, ओके सर, पीएम may not necessarily be in Lok Sabha, he may not belong to neither of the house, right sir? Yes, for 6 months कहीं से भी आ जाओ, for 6 months you can be neither from Lok Sabha nor from Rajya Sabha, it does not care, okay, ठीक है राजकुमार, alright, Vikrant Thopte, I'm very impressed from your teaching sir, I've learned from many experts but you're the expert of them, God bless you my friends, okay, thank you very much, तो मैं स्माइल करूंगा, थैंक यू, ओके, थैंक यू, लव यू, मुझे ऐसे डूडल्स बनाने बड़े अच्छे लगते हैं, ओके, थैंक यू ब्रदर, ओके ओके अविनाश, थैंक यू, गॉड ब्लेस। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके, थैंक यू आकांक्षा, राइट, आज का टॉपिक थोड़ा डेंजरस टॉपिक है, ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ भी जब तक मैं नहीं पूछूंगा ना तब तक कंफ्यूज मत होना, ओके, लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें लोकसभा से बेटर मालूम होगा हाउ टू पास बजट, ओके, सो दिस इज इट, राइट, सो दिस इज द एंटायर थिंग, सो जस्ट पे अटेंशन, यूपीएससी आरजे, मुझे याद है, रंजन, so today I have healthy discussion with a teacher who said that the office of president should be removed. Then I gave your logic and I discussed with him and approved it. Very good. Bang on, my friends. More power to you. Okay, very good. ऐसे करके ऐसा अग्नि 5 मिसाइल मार दिया करो. Alright. ऐसा कैसा office of president dissolve करेंगे? It is a mandatory office. Head of the state है. Okay, very good. I told somebody at Vision, Saturday I had a class at Vision. Saturday or Friday, forget it. तो मैंने उन लोगों को बोला तो just two classes left. Okay. So suddenly they started discussing on शायद RTI amendment या पता नहीं something like that. Okay. Now I was so happy because they were giving me discussions from the constitution जैसे तुम लोग दे रहे हो. Okay. जैसे तुम लोग दे रहे हो. Okay. This is just 1 second. I'll just take this call. Just give me 2 seconds. Hello. Hi bro.
Sorry, friends. Sorry. Okay, guys. Chalo, my friends. गाड़ी में बैठो. Chalo, sit down. Okay, all of you sit down. Relax. Okay, take out your registers and follow the story. All right. मैंने लास्ट टाइम किया था डेफिनेशन ऑफ मनी बिल. सब लोग रेडी हो? ऑलरेडी? ऑलराइट. मैंने तुम्हें डिफाइन किया था मनी बिल एज आर्टिकल 110. आर्टिकल 110 एंड आई टोल्ड यू ओनली. अब ध्यान से सुनते रहो. देखो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में से. ओके, तभी तुम्हें समझ में आता है. A bill shall be deemed to be a money bill if it contains, ये देखो, ये है वो only provisions dealing with all or any of the following matters. मैंने क्या बोला था? Imposition, abolition, regulation, remission and alteration of any taxes. याद आ रहा है सबको? Friends, जाग जाओ सब लोग. Ready? Yes. मैंने तुम्हें ये exactly memorize करवाया था. Yes. Imposition, abolition, regulation, remission and alteration of taxes. Right? Then I told you, regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. The custody of the consolidated fund or the contingency fund of India. इसको बाद में कर लेते हैं. But the important word is consolidated fund. Appropriation of the monies outside the consolidated fund of India. Declaring of any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund of India. Receipt of money on consolidated fund of India. तुम्हें notice हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? Okay, all the money that is being dealt by in the consolidated fund of India and imposition, abolition, regulation, remission and alteration of any taxes is the definition of money bill. Are you understanding, my friends? Okay, इसीलिए जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ते हो तो तुम एब्सोल्युटली हिट करते हो. ओके, दुनिया की कोई ताकत में तुम्हें कुछ और डेफिनेशन नहीं आएगी. तुम सीधा रीड करोगे फ्रॉम आर्टिकल 110. दो ही चीजें. ओके, money that is dealing with consolidated fund of India and abolition, regulation, remission, alteration and regulation of taxes if it contains only provisions dealing with these matters. Are you understanding, my friends? सबको समझ में आ गया? ये क्या डिस्कशन चले जा रही है यार? विक्रांत, यही सब करते रहो, my friends. You know, ट्रेन के आगे भागो, ट्रेन के पीछे भागो, ट्रेन के साइड में भागो. ओके, सब्जेक्ट निकल जाएगा. ओके, इकोनॉमिक्स के टाइम पॉलिटी करो, पॉलिटी के टाइम हिस्ट्री पढ़ो. क्या है? What is all this?
there should be elephantine focus. Are you understanding? इसको बोलते हैं elephantine focus. कभी करना, कभी इसको साइकोलॉजी में पढ़ना. व्हाट इज एलिफेंटाइन फोकस? जब एक हाथी होता है ना माय फ्रेंड्स, हाथी वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा होता है, मैं आगे क्या कर रहा हूं. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड, इसलिए बोलते हैं कि गणेश जी का हाथी का सिर होता है. व्हाई? इट गिव्स यू एलिफेंटाइन फोकस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. अर्थक्वेक भी आया ना, इस टाइम पर अपना काम करो प्लीज. फॉरगेट अबाउट दिस टाइम पास. Concentrate here, everyone. Any kind of time pass discussion, this is not the place. Okay. क्लास के बाद में डिस्कस करो, टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, गप्पे मारो. Okay. All right. A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters: imposition, abolition, regulation, remission, or alteration of taxes. और ये B, C, D, E, F ये सारा कुछ is actually dealing with the Consolidated Fund of India. Everyone has understood? अब जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं और हम मनी बिल की बात कर रहे हैं, तो मनी बिल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मनी बिल, as I have already told you, is being dealt by under Article 110 of the Constitution of India. Okay, तो सर मनी बिल क्या करेगा? Okay, और what is money bill going to do? Now money bill has to be introduced in the Lok Sabha. मैंने क्या बोला? It has to be introduced in the Lok Sabha. Okay, now important बात है. This is a very important change from the condition of ordinary bill, which can be introduced either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. So it has to be introduced in the Lok Sabha. तो sir ऐसे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दूं? ना, इंट्रोडक्शन ऐसे मत करना. इसको इसलिए इंट्रोडक्शन ऐसे मत करना because it requires prior recommendation of the president. क्या मैंने बोला? It requires prior recommendation of the president. तो प्रेसिडेंट साहब पहले इसको रेकमेंड करते हैं. ओके, और फिर ही ये इंट्रोड्यूस होगा इन द लोकसभा. सर लोकसभा ने पास कर दिया, अब आपको राज्यसभा में भेजना है? हाँ भेजना है, नो डाउट अबाउट इट, बट राज्यसभा का पासिंग इज मियरली अ फॉर्मेलिटी. वेरी गुड सर. सर लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब प्रेसिडेंट साहब के बाद भेजूं क्या? बिल्कुल भेजो. ओके, तो प्रेसिडेंट साहब असेंट देंगे कि वीटो करेंगे? प्रेसिडेंट साहब वीटो नहीं करेंगे. The president is not allowed to utilize his veto. He will give his assent. Are you understanding? ये picture clear है? Everyone is clear? तो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर समझते हुए चलेंगे. Okay, number one, it requires, money bill requires prior recommendation of the president. It has to be introduced in the Lok Sabha. It is mandatory for the Lok Sabha to pass it. Okay, the Rajya Sabha is merely a formality. Okay, and the president is not allowed to use his veto power as written in Article 111. Okay, money bill is the one which is dealt by under Article 110. यहाँ तक clear है? Everyone is clear? All okay? Very good, sir. चलो नोट्स बनाते चले जाना, टाइम पास में दिमाग मत वेस्ट करना. Okay, keep making notes. Very good, sir. Now I hope you realize because of this Lok Sabha is the more powerful house. इसलिए उसको क्या word use करते हैं? जल्दी बोलो. Because Lok Sabha has got the power to pass money bill, it is called as the power of, very good, everyone, power of purse. Okay, it is called as the power of purse. Very good, sir. Chalo, ready? Next point. Okay, everyone, focus completely here. 1001% attention, otherwise कुछ समझ में आने वाला है नहीं. All right. So, sir, example of money bill दो sir. Example of money bill बेटा is budget. क्या है? Example of money bill is budget. Very good, sir. Sir, आप सब कुछ Constitution of India में से बताते हैं, जरा पता ना कहाँ लिखा हुआ है budget? ओहो, very sad. ओके, बजट तो कहीं लिखा ही नहीं है. ओके, व्हाट? यस, बजट तो कहीं वर्ड ही नहीं यूज हुआ है. ओके, देयर इज नो सच वर्ड एज बजट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सर आप तो बोलते थे एवरीथिंग इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन और डिस्क्राइब सम प्लेस. हाँ बेटा, बट नहीं लिखा हुआ है बजट, बिकॉज बजट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म. मतलब सर हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इसको पास करवा रहे हैं? यस, इन अ वे, बिकॉज द क्लोजेस्ट टर्म दैट कम्स टू द बजट इज आर्टिकल 112 व्हिच सेज that the president shall cause, मैं क्या बोल रहा हूं? The president shall cause the laying down of annual financial statement. मैंने क्या बोला? Laying down of annual financial statement in the parliament. Sir, यहाँ बजट तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं है. The word that comes closest to the budget is, बोलते हुए जाओ, कौन सा वर्ड बोला मैंने? Annual financial statement. और ये कहाँ लिखा हुआ है सर? जल्दी बोलो, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 112. कौन हु विल ले डाउन?
Who will lay down? देखते हैं अभी मजा आएगा. Who will lay down? President. Very good. Wrong हो गया. Why? President shall cause the laying down. President is not laying down. President shall cause the laying down. Vikrant caught it very well. The president is not laying down. The president shall cause the laying down. तुम्हें याद है सर इसको कैसे ऐसा किया सर? प्रेसिडेंट खुद नहीं काम करेगा. Okay. आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ था? देखो कैसे कनेक्ट करते हैं. It says all the executive powers shall be vested in the president. All the executive powers shall be vested in the president, who may use it directly or through officers subordinate to him. I hope तुम समझ रहे हो. Yes or no? ऐसे कनेक्ट करते हैं my friend constitution को. Okay. As officer subordinate to him includes the Union Council of Ministers. और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर. Are you understanding my friends? समझे बच्चों? रट के कुछ नहीं होने वाला. You have to understand this. Okay. Very good, Subha Shakti. Perfect. Okay. Everyone has understood. Okay, sir. So who will cause the laying down? Who will cause the laying down? The president will cause. But who will lay down? The finance minister will lay down. Everyone has understood. Notes बनाते हुए चलो. Everything should be absolutely ready on this. Okay. ये ट्रेन मिस हो गई, स्टेशन नंबर 1 से वापस आना नामुमकिन हो जाएगा. ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड. सो नेक्स्ट पॉइंट. अब बेटा बात यहाँ पे ये है, बात यहाँ पे है कि बजट ना मेरा होता है. मेरा मतलब ये गवर्नमेंट का होता है. रूलिंग गवर्नमेंट का मर्जी चलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने अगर इफ आई lay down the government and lay down the budget this year, I will be remembered. This was laid down by Narendra Modi government. Okay, so हम याद रखेंगे इसको. तो when the government is ruling, whoever is ruling, ये सारी की सारी मर्जी मेरी चॉइस है. Okay, I will lay down. मेरा काम सिर्फ ये है that Article 112 says that the president shall cause the laying down of annual financial statement. कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कितना होगा, किस तरीके से होगा, ये सब मेरी मर्जी. Are you understanding? मैं कौन? मैं गवर्नमेंट. Are you understanding, friends? Okay, बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood? अब 1921, okay, एक चेंज हुआ. 1920 में से पहले, right? 1920 में ब्रिटिशर्स ने एक कमिटी बनाई which is called as the Ackworth Committee. क्या बोलते हैं इसको? Ackworth Committee. So Ackworth Committee ने एक proposition दिया. Ackworth Committee ने बोला तुम लोग पागल हो ब्रिटिशर्स. बोला क्या मतलब? बोला तुम लोग बजट निकालते हो कॉमन बजट. Okay, तुम्हें मालूम है that about 70% of revenue 70% ऑफ रेवेन्यू जो कॉमन बजट में से आ रहा है वो तो रेलवेज में से आ रहा है. ओके, तुम लोग क्या ऐसा कॉमन बजट निकालते हो? ऐसा नहीं निकालो. ओके, सो इन 1921 Ackworth कमेटी ने रिपोर्ट दिया. ओके, Ackworth कमेटी ने रिपोर्ट दिया और Ackworth कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1924 से ऑनवर्ड्स बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ब्रिटिशर्स ने. वन वाज कॉल्ड एज द रेल बजट, द अदर वन वाज कॉल्ड एज द जनरल बजट. ओके, सो दे बाइफर्केटेड. ओके, was called as a general budget. So there was a rail budget and there was a general budget. Okay, now तो हम लोग चलते रहे. हम लोगों ने दो अलग अलग बजट बनाए. एक मिनिस्ट्री ऑफ रेल का था. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, बड़ा खतरनाक ट्रैप होने वाले थे. तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज यूज्ड टू प्रेजेंट द रेल बजट एंड द फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू प्रेजेंट द जनरल बजट. ऐसा ही चलता रहा. देन 2014 में, ओके, 2017 में, on the recommendations of Vivek Debroy. I don't know तुम विवेक देबरॉय साहब के बारे में जानते हो कि नहीं. ओके, he is a member of नीति आयोग. ओके, उन्होंने recommendations दिया कि नहीं यार वो पुराने दिन रेलवे बजट के नहीं है. ओके, रेलवे बजट के ओके अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट अस मर्ज इट. राइट, सो हम इसको मर्ज कर देते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 हमने इसको दोबारा इसको कॉमन कर दिया. सर ये तो आपकी मर्जी चल रही है. मैंने तो पहले ही बोला था ये तुम्हारी मर्जी है. से द वर्ड, इट इज माय चॉइस. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना मेरा काम है. ओके, बट वो कैसे प्रेजेंट करना है, कब प्रेजेंट करना है, ये मेरी मर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बच्चे एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ये थोड़ी सी हिस्ट्री याद रख लेना. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. हो सकता है विवेक देबरॉय साहब का ये क्वेश्चन भी आ जाए. ओके, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन. कभी पढ़ना इनकी बुक. ही हैज रिटन अ वेरी गुड ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत. अगर कभी पढ़ने को मौका मिला तो पढ़ लेना. अभी मत पढ़ना क्योंकि फेल हो जाओगे बिकॉज़ बहुत मोटा सा ट्रांसलेशन है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक बट सम अदर टाइम. आइदर वेज,
सो विवेक देबरॉय साहब ने का नीति आयोग का प्रपोजिशन हुआ एंड वी मेड अ कॉमन बजट आउट ऑफ दैट। तो सर कल गवर्नमेंट आए तो कल इसको वापस चेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जब मर्जी, योर चॉइस, मेरी मर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? ऑल ओके? ऑलराइट, नाउ माय फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। सर प्रेजेंट कब करोगे बजट? ओके, नाउ प्रेजेंट करेंगे हम बजट। ओके, अब ये भी सर कन्वेंशन है। हाँ, ये कन्वेंशन है। दिस इज अ कन्वेंशन दैट हम लोग लास्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट प्रेजेंट करते थे। ओके सर, लेकिन यहाँ तो चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। ओके, फिर आजकल हम लोग वी हैव स्टार्टेड प्रेजेंटिंग इट इन द फर्स्ट वीक। सर हम जनवरी में भी कर सकते हैं, मर्जी तुम्हारी। ओके, हाउएवर दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन कन्वेंशंस। वेरी गुड सर। तो मैं यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ऑफ एवरी ईयर, ओके, आई विल प्रेजेंट द बजट। Everyone has understood, my friends? Okay, very good, sir. Now, अब मैं तुम्हें प्रोसीजर बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब सुनो, तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। सपोज अब हम प्रेजेंट करेंगे बजट। ओके, रेडी? राइट, अब हम एक कंबाइंड बजट पास करने वाले हैं और हम कंबाइंड बजट पास करेंगे ऑन फर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ February 2020। ओके, लेट अस प्रेजेंट। तो मैं कौन हूं? मैं हूं द गवर्नमेंट, राइट? So I am the finance minister headed by the Prime Minister of India. Okay, so I'm a member of UCOM. All right, so the Minister of Finance will now present a budget on the first week of February 2020. अगर तुम लोग first week of February 2020 में होगा ना, तो please understand. Okay, ready? Okay, so August, September, okay, ये हो चुका होगा अब तक। This has already started. तो तुम लोग इसको न्यूज़पेपर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखने लग जाएगा कि ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गए। तो सितंबर अगस्त ऑफ सितंबर 2019 के आसपास इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कब स्टार्ट करें? अगस्त सितंबर। बिल्कुल स्टोरी की तरह जाने देना, जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन। ओके, ऑलराइट। सो क्या करने वाले हो? बड़े ध्यान से सुनना। ओके, नाउ द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बोलते हो जाओ, मैंने क्या बोला? बोलते हो जाओ। बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोलो जरा, तीनों लाइन बोलो, जल्दी बोलो। बजट डिवीजन ऑफ द हो क्या चलेगा तुम लोग? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। ओके, हु प्रिपेयर्स द बजट? द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, दिस इज एन आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, ये टेस्ट सीरीज में आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इनका काम है टू प्रिपेयर द बजट। वेरी गुड सर। तो ये क्या करेंगे? ये निकालेंगे एक बजट सर्कुलर। मैं तुम्हें एग्जैक्टली वैसे बता रहा हूं जैसे पार्लियामेंट में होता है। सो ये क्या निकाल रहे हैं? बजट सर्कुलर निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं अगस्त सितंबर 2019 में। सर ये किसको भेज रहे हैं? ओके, ये बजट सर्कुलर भेजा जाएगा टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स। मैंने क्या बोला? ऑल मिनिस्ट्रीज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। क्या भेज रहे हैं सर? ये भेज रहे हैं बजट सर्कुलर। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, दे आर सेइंग, दे आर टेलिंग, दे आर इनवाइटिंग द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स। क्या भेज रहे हैं? इन्विटेशन। ओके, दे आर सेंडिंग इन्विटेशन टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट्स को कि बेटा आप लोग भेजना स्टार्ट करो व्हाट आर कॉल्ड एज डिमांड ऑफ ग्रांट्स। क्या भेजना स्टार्ट करो? डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ओके, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक पिक्चर एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या है? मैं तुम्हें एक दिखाता हूं। ओके, सो नाउ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है? डिमांड ऑफ ग्रांट्स आर द रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्ड एस्टिमेट्स। मुझसे कुछ भी मत पूछना विक्रांत जब तक चैप्टर खत्म ना हो। ओके, डिटेल्ड एक्सपेंडिचर, ओके, एस्टिमेट्स, डिटेल्ड एस्टिमेट्स जो मेरा मिनिस्ट्री को चाहिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कितना पैसा चाहिए तुमको ऑन द बेस ऑफ योर पॉलिसी एंड प्लान्स। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिसी एंड प्लान्स। मेरी बात समझ में आई? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एक डिमांड ऑफ ग्रांट भेजेगा। क्या भेजेगा? डिमांड ऑफ ग्रांट। क्या है सर डिमांड ऑफ ग्रांट? डिमांड ऑफ ग्रांट होगा
कि हमको चाहिए 1 लाख करोड़ रुपीस। ओके, क्यों चाहिए सर 1 लाख करोड़? क्योंकि मुझे राफेल फाइटर प्लेन्स खरीदने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एवरीवन? वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भेजेगा कि मुझे 20,000 करोड़ रुपीस चाहिए। बोलेंगे भाई तुमको क्या कुछ चाहिए? तो बोलेगा हमको ओलंपिक साइज स्टेडियम्स बनाने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी ऐसा भेजेगा। सब लोग डिटेल डिमांड ऑफ ग्रांट्स भेजेगा। तू किसको भेज रहा है? किसको भेज रहा है? जल्दी बोलो। बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबको समझ में आया या नहीं? एनी डाउट्स टिल नाउ? Any doubts till now? You have 30 seconds. No doubt. Very good. India में ऐसे 107 demand of grants allowed है. Okay. Lakshmikant में शायद 109 या 106 दिया, but I think it is 107. Okay. So now 107 demand of grants हम लोग allow करते हैं. Okay. Maximum. ये थोड़ा variable है because last budget में 99 थे, but maximum 107 demand of grants allowed है. Okay. तो किसके पास आ रहे हैं? ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स आ रहे हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां तक समझ में आया या नहीं? यहां तक एब्सोल्यूट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्यूट डायमंड। यस, वेरी गुड। ऑलराइट सर। सर अब क्या करना था? खत्म हो गया? अरे नहीं बेटा, अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी तो अगस्त सितंबर है। ऑलराइट, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। ओके, तो मैं हूं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मुझे आने लग गए हैं फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स 107 डिमांड ऑफ ग्रांट्स मुझे आ गए। मैंने सबको जमा कर लिया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू जमा हो जा। ओके, सो 107 डिमांड ऑफ ग्रांट्स मैंने अपने पास जोड़ के रख लिए। इसको नाम दे देते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको? ए अभी के लिए। अब बेटा ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स कौन से, कब का डिमांड है? व्हेन आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दिस? दिस इज फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सबको मालूम है व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? सबको मालूम है व्हाट इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? ओके, 1 अप्रैल ऑफ 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लोग पैसा मांग रहे हैं। डू यू एग्री और नॉट? यस और नो? एवरीवन इज एग्रीइंग? गुड, वेरी गुड सर। अब क्या सर, आगे क्या? अरे आगे तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम ये सोचो कि दिस इज फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डू यू रियलाइज, ओके, डू यू रियलाइज कि पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का भी तो जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स था वो भी तो मेरे पास लिखा हुआ होगा ना कहीं ना कहीं? यस और नो? ये तो पिछले नेक्स्ट ईयर का था ना, पिछले साल वाला भी तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। जो तुमने पिछले साल मांगा था मुझसे, उसको नाम दे देते बी। क्या मैंने बोला? उसको नाम दे देते बी। तो ए इज व्हाट? नेक्स्ट ईयर्स डिमांड ऑफ ग्रांट्स। बी इज व्हाट? प्रीवियस ईयर डिमांड ऑफ ग्रांट्स। बराबर है यहां तक? क्लियर? ओके, तो ए हो गया, बी हो गया। वेरी गुड सर। अब क्या सर? अब क्या? अब सी इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? सी इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये साल मेरा प्लान क्या है, व्हाट इज माय प्लान टू स्पेंड मनी ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हर साल ये वेरी करेगा। किसी साल डिफेंस होगा, किसी साल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पहले एग्रीकल्चर था, कभी एजुकेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये इकोनॉमिक पॉलिसी। वेरी गुड सर। डी इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ओके सर, इसमें क्या है सर? अरे इसमें क्या है सर यार? ग्लोबल ऑयल रेट क्या होने वाला है, डॉलर क्या होने वाला है, चाइना क्या करने वाला है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यस और नो? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर देगा भगवान जाने। यू अंडरस्टैंड? एक जनरल इंडिया रिसेशन आने वाला है कि नहीं होने वाला। दीस आर ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ओके, सो दिस कैन बी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बात समझ में आया माय फ्रेंड्स? ऑल ओके, वेरी गुड सर। नेक्स्ट क्या सर? सर ई एस की जो तुमने प्रीवियस ईयर खर्चा किया है ना, the account statement of the government, account statements of the government of India of the previous financial year, कि तुमने कितना कमाया, कितना वेस्ट किया, कितना आया, कितना गया, क्रेडिट एंड डेबिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बच्चा एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड सर। और एफ ये है कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट के टैक्स प्रपोजल्स क्या है, कि टैक्स पॉलिसी या ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है सर? ये है टैक्स प्रपोजल। सबको समझ में आ गया? एक बार रिपीट करें। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए व्हाट इज द डिमांड ऑफ ग्रांट्स? इज ए। प्रीवियस ईयर का डिमांड ऑफ ग्रांट्स इज बी। इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इज सी। ओके, डी इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और रिपोर्ट्स, ऑलराइट। ई इज अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and F is tax proposals or policy, income tax कितना होगा, GST क्या होगा, etc etc is all financially. Are you understanding my friends? Everyone has understood?
So A plus B plus C plus D plus E plus F together is called as budget. बात समझ में आया या नहीं? Everyone has understood. Friends, everyone has understood. So budget is not a small piece of paper. Budget comes in a military truck. ये ट्रक में भर के आता है. Why? Because this is not a small bill, right? It is the entire demand of grants. Okay. Then it is the demand of grants of previous year, economic policy, economic indicators, economic surveys, account statements, tax proposals, tax policies for the next financial year. Are you understanding this part? Push out between B and E. B and E में तो कोई लेना देना नहीं है. फिर अकाउंट स्टेटमेंट है, तुमने कितना कमाया कितना चला गया. Everyone has understood this part or not? कभी कुछ वाई वाई मत पूछो, अभी तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है. वाई वाई मत पूछो, अभी तुम पूछो ये यहाँ तक समझ में आया है या नहीं. Everyone has understood, my friends. A plus B plus C plus D plus E plus F is yes or no? Everyone has understood? D includes economic survey. Yes. Total 107 demand of grants. यार अनुराग क्या हो गया बेटा? 107 from each ministry. दहेज ले रहा है क्या वो? एक्सटॉर्शन हो रहा है भाई. एक ही समझना बेटा. व्हाट इज द मिनिस्ट्री? मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तुम एग्जांपल को नहीं अप्लाई करते. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलेगा मेरे को राफेल फाइटर प्लेन खरीदना है. ओके, मुझे 1 लाख करोड़ दे दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बच्चे समझने की कोशिश करो, कॉमन सेंस यूज करते हुए चलो. 107 डिपार्टमेंट डिमांड ऑफ ग्रांट्स आएगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सारी मिनिस्ट्री, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से. वेरी गुड विक्रांत, आई एम प्राउड ऑफ यू. नो डाउरी. भगवान करे कि मजाक बन जाए, जैसे मैंने मजाक बनाया ना वैसे मजाक बन जाए एक दिन, कि हम भूल जाए कि डाउरी नाम की कोई चीज होती है. लेट इट बिकम अ जोक. वेरी गुड विक्रांत. All okay, my friends? A plus B plus C plus D plus E plus F is called as a budget. Picture clear? All okay? All right, sir. Great. चलो. Yes, sure, but good. सर अब क्या करना है? अरे सर अभी तो खत्म हो गया, बजट हो गया. अरे नहीं बाबा, अभी तो मैंने सिर्फ बजट को डिस्क्राइब किया है, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है. तो बजट इज A plus B plus C plus D plus E plus F. ओके, मैं अभी इसको बार बार नहीं करूंगा. ओके, अब मैं इसको ऐसे याद रखूंगा. राइट सर. अब क्या करूंगा सर? अब सर हम करेंगे प्री बजट मीटिंग्स. क्या करेंगे हम? प्री बजट मीटिंग्स. सर कौन सी प्री बजट मीटिंग्स करने वाले? माय फ्रेंड्स, अब मैं बुलाऊंगा. अब मैं हूं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ओके, आई एम द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. राइट. सो आई विल स्टार्ट डूइंग प्री बजट मीटिंग्स. राइट. सो नाउ मैं क्या करने लग जाऊंगा? आई विल स्टार्ट कॉलिंग. आमतौर पे ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है. कौन करता है ये? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. सो ये कहां से आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स? ये तुम लोग ही बनोगे जब तुम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन करोगे. ओके, जब तुम IRS या IAS ऑफिसर्स बनोगे तो तुमको ये जगह मिलेगी. ओके, सो यू विल बी वन ऑफ द डिपार्टमेंट. तो पिछली बार क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर था. अब कौन हो तुम लोग? अब तुम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पोर्टफोलियो सिस्टम है माय फ्रेंड. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, दिस इंक्रीजेस आंसरेबिलिटी. इससे स्ट्रीमलाइनिंग होती है. तो सर आप लोग क्या करने वाले हो? हम ना बुलाएंगे. किसको बुला रहे हो सर? हम बुलाएंगे बड़े बड़े बिजनेस पर्संस को बुलाएंगे. हम चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को बुलाएंगे. वेरी गुड सर. क्या करने वाले हो? राइट. अरे रुको सर, हम जर्नलिस्ट लोगों को भी बुलाएंगे. वेरी गुड. हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे. राइट. हम FIIs को भी बुलाएंगे. Who are FIIs? The foreign institutional investors. Okay, they are the foreign institutional investors. Okay, so हमने बिजनेस हाउसेस को बुलाया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बुलाया, टाटास को बुलाया, फिक्की को बुलाया. ओके, हमने जर्नलिस्ट लोगों को बुलाया, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, FIIs को बुलाया, और उनको हम लोगों ने हम उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं. That what do you want from the government? तो हम इन ओपिनियंस को कंसिडर कर सकते हैं ताकि we get to know what are the people expecting out of that. Are you understanding? Friends all okay? Friends all okay? Very good sir. अब हो गया कि नहीं हुआ सर? हाँ, करीब करीब हो गया. राइट. अब यूजिंग ऑल दिस मैं अपना बजट रेडी करूंगा. बजट रेडी करोगे सर? आप तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो, आप क्या रेडी करोगे? अरे कुछ नहीं, हम बजटरी प्रपोजल्स रेडी करूंगा. मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्ड सुनो, वर्ड को पकड़ो माय फ्रेंड. मैं क्या बोल रहा हूँ? बजटरी प्रपोजल्स रेडी कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हूँ. वेरी गुड. जनवरी तक
ओके, यूजुअली, ये सब यूजुअली, ओके, जनवरी को मैं ये बजटरी प्रपोजल्स कैबिनेट को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? कैबिनेट को दे दूंगा, ओके। एंड यूजुअली जब कैबिनेट होगा, यूजुअली बाय एंड ऑफ जनवरी या थर्ड वीक ऑफ जनवरी इनको फाइनलाइज कर देगा। किसको फाइनलाइज कर देगा? किसको फाइनलाइज करेगा? बजटरी प्रपोजल्स को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बच्चे समझ में आ रहा है? प्लेन ऊपर से जा रहा है? एवरीवन इज गेटिंग 100% क्लियर ऑन दिस? Everyone, there should be not a centimeter of doubt here. मैं बिल्कुल क्लियरली बच्चे की तरह तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ओके। नाउ वेरी गुड। अब क्या करोगे सर? अरे रुको, अब जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो कैबिनेट बोलेगा ओके वी आर रेडी, राइट? तो वी आर रेडी। अरे बाबा कैसे रेडी? नाउ तुम ये बात बोलोगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट को। किसको बोल रहे हो? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। क्या बोल रहे हो उसको? तुम बोल रहे हो हम ना रेडी है, ओके, हम इसको रेडी है, ओके। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब हम रेडी है, ओके, हम XYZ डेट पर बजट प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ओके करो, ओके। बोलेंगे रुको सर हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये डेट इन्फॉर्म की जाएगी टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो किसकी कोऑर्डिनेशन हो रही है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। कौन कर रहा है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। बात समझ में आया या नहीं बच्चे? एवरीवन इज क्लियर और नॉट? 100%, ओके। तो प्रेसिडेंट साहब को हमने बता दिया, स्पीकर साहब को बता दिया। सर चेयरमैन को क्यों नहीं बताया? चेयरमैन को क्यों नहीं बताया? Why are we not telling the chairman? Why? Because you have to introduce it in the Lok Sabha. अरे क्या लिख रहा है यार संदीप? एग्जीक्यूटिव कुठे आहे? वेरी गुड, चलो लवली। ऑलराइट, ठीक है सर। वन फाइनल टाइम, व्हाट इज बजट? बजट इज A plus B plus C plus D plus E plus F। वेरी गुड सर। कौन प्रेजेंट कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट कर रहा है। मैंने सारे बजटरी प्रपोजल्स कर लिए, कैबिनेट को दे दिया, कैबिनेट ने फाइनलाइज किया, फाइनलाइज करके we gave it to the secretary general of Lok Sabha secretariat. Lok Sabha secretariat will now coordinate between the president and the speaker and we are ready to present the budget. Now हमने डिसाइड किया, सपोज ऐसे मैं बोल रहा हूँ, सुनने में बड़ा 4 फरवरी ऑफ 2020 को हम प्रेजेंट करने वाले। तो यूजुअली ओके 2 to 3 days before, usually, okay, it can be a couple of days also, हम करेंगे हलवा सेरेमनी। क्या करेंगे हम? हलवा सेरेमनी, ओके। सो वी विल नाउ गिव यू अ हलवा सेरेमनी। हम सब लोगों के लिए मीठा बनाएंगे, ओके, कि अच्छा खुशी का दिन है, चलो सब लोग हलवा खाओ, ओके, बड़ा काम कर रहे हो, ओके। नाउ इस हलवा को हम सब लोगों को देंगे, ओके। सो दिस मिठाई वुड बी, हलवा वुड बी गिवन टू ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिसर्स हु वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, ओके। और जैसे ही हम उनको हलवा खिलाएंगे फिर हम उनको लॉक कर देंगे, ओके, हम उनको लॉक कर देंगे कि भाई अब तुम लॉक हो गए, ओके। नाउ अंडर लॉक एंड की, नाउ तब तक बैठे रहो जब तक ये बजट प्रेजेंट नहीं होता, ओके। व्हाई बजट नहीं होता? ओके, क्योंकि दिस इज अ सीक्रेट सर्विस, दिस इज अ सीक्रेट प्रोसेस। हम बजट को लीक नहीं होने देना चाहते एंड देयरफॉर वी विल फिनिश ऑफ द हलवा सेरेमनी विद देयर लॉकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन गुड। अब क्या करोगे सर? अब ना यूजुअली अगर 4th को है सपोज, तो यूजुअली ऑन दैट मॉर्निंग, ओके, यूजुअली ऑन दैट मॉर्निंग या फिर वन इवनिंग बिफोर, ओके, वन इवनिंग बिफोर फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट की एक समरी बनाएंगे, बजट की एक समरी बनाएंगे और प्रेसिडेंट हाउस के पास चले जाएंगे। शुभम और विच टर्म कैन बी यूज्ड इन एग्जाम? ओके, और वो प्रेसिडेंट हाउस में जाकर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ ना माय फ्रेंड, वो ब्रह्म वाक्य है, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। हलवा सेरेमनी को और क्या बोलेंगे? पॉरिज सेरेमनी, ओके। हलवा हलवा ही होता है माय फ्रेंड। ऑलराइट, लिसन टू मी नाउ। द प्रेसिडेंट हाउस के पास जाएंगे। हु इज गोइंग हियर? द फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग, ओके। नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स अ समरी ऑफ द बजट एंड गोज टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे डियर प्रेसिडेंट साहब ये है हमारा बजट, इसकी समरी है। तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ओके, ओके, एंड द प्रेसिडेंट साहब विल साइन इट। ये जो सिग्नेचर है ना माय फ्रेंड्स,
ऑन दिस समरी, इसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे, डियर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जाओ तुम्हारे पास मेरी परमिशन है, जाओ लोकसभा में इसको प्रेजेंट करो। What is this called? The president causes the laying down of the. Are you understanding, my friends? Everyone has understood. Okay. This is written in Article 112. Are you understanding, my friends? ऐसे पढ़ते हैं Constitution, my friend. तब तुम्हें समझ में आता है. Everyone has understood? सुभद्रा ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखेगी ना, गिविंग इज असेंट वगैरह, स्टेज पे फेल हो जाओगे। ओके, जो वर्ड है उसको वैसे ही रखोगे तो बेटर रहोगे, जिंदा रहोगे, नहीं तो 2021 में तुम दोबारा एग्जाम दोगे। ओके, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही समझो, ये शब्द भेदी बाण है। ओके, तुमने किसी और का नाम ले लिया, कहानी खत्म, तीर कहीं और जाके लग जाएगा। ओके, डोंट मिस इट अप प्लीज। ओके, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ unintelligent observation. I said prior recommendation, then it is prior recommendation. क्या डाउट आ रहा है क्या फिर से? So would you discuss the object? यार obviously यार, ये सब टाइम पास, ये वोडियो मत करो my friend please. I gave him the idea by Indira Gandhi made a book binding on the president, that is the word. Very nice, thank you. So what is the logic to send president for prior recommendation money bill? Because that is the requirement of money bill. What is the logic means क्या है? Sir, concerned department will also send the policy. यार या तो तुम्हें मेरी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, या तुम लोग ऐसा कॉमन सेंस में से बिल्कुल छोड़ चुके हो। बोल तो दिया माय फ्रेंड्स, बता तो दिया, अभी भी तुम वो पॉलिसी पे अटके हुए हो, हम वहां पे पहुंच गए। अनबिलीवेबल है। आजे तू इंटेलिजेंट रहो यार। Who brings all this data together? You will do it बेटा। IS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स, इतना सब। या आरजे साहब को हमारे बहुत डाउट्स रहते हैं। Sir, if concerned minister will not be able to expend on the policy, will the concerned department will return the money? यार तुम कहाँ आगे चलते रहते हो? बोरिंग हो गया तुम। I have seen a special episode on RSTV, but unable to understand the essence of how it is made. You made it really easy. Thank you बच्चा। All right. और यार टाइम पास डाउट्स मत पूछो यार माय फ्रेंड्स प्लीज यार, शो मी योर इंटेलिजेंस। क्या आप बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो? मेरा बेटा भी नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। ओके, अब वो देखो शिवा शक्ति साहब को और ही कोई डाउट आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज प्रेजेंट देयर बजट। ओ बाबा, मैं ये दोबारा कर रहा हूँ कि बहुत सारा गड़बड़ हो गया। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो माय फ्रेंड्स। ऑलराइट। अरे विक्रांत, तू पण मराठी माणूस? अरे बरं, गुड। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, लिसन, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। तो चले लोकसभा। ऑलराइट सर। सर अब हमारा बजट है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विल गो टू द लोकसभा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्लास। ओके, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम लोग को कभी नहीं आने वाला। ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ऑलराइट, ये कहीं नहीं समझ में आएगा तुमको। Now, the Lok Sabha में Minister of Finance goes. Okay, so Minister of Finance goes to the Lok Sabha, tells the Speaker, Madam Honorable Speaker, I want to present the budget. The Speaker will say, okay, I give you the leave. क्या बोलते हैं इसको? I give you the leave. I give you the permission. Stage 1 होता है what is called as introduction stage. क्या बोलते हैं इसको? It is called as introduction stage. Okay, तुम्हें याद है ऐसा ordinary bill में भी था? My friends, कुछ याद आ रहा है? ऐसा ना? तो तुम्हारे पास introduction stage तो वहां पे भी था। Okay, so तो इसमें क्या फर्क आ गया सर? बेटा इसमें सिर्फ ये फर्क आ गया है कि वहां पर जो ऑर्डिनरी बिल था उसमें जो भी डिस्कशन था, जो भी इंट्रोडक्शन हो सकता था, वो इंट्रोडक्शन लोकसभा में भी हो सकता था और वो इंट्रोडक्शन राज्यसभा में भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इट विल हैपन ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा। बात समझ में आया या नहीं? ओके, वेरी गुड सर। अब क्या करोगे सर? A Minister of Finance gives a general introduction of the bill. Which bill? Of budget. Okay. So इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। So इसमें डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हो सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, ये लोकसभा में हो रहा है। प्लीज मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो और अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, सो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट यहाँ पर दिया जाएगा। नो डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन यहाँ पर अलाउड है एट ऑल। ओके, देयर इज नो डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन अलाउड नहीं है सर। इसमें
कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं अलाउड है? नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने बोला दैट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउड होती है। क्या अलाउड होती है? पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउड होती है। ओके, डिटेल डिबेट डिस्कशन नहीं अलाउड होती। ऑब्वियस बात है ना, अभी तक तो हाउस ने देखा ही नहीं है ये बजट। ओके, हाउस को बेचारे को क्या मालूम है कि बजट में क्या लिखा हुआ है, बट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इज अलाउड एट दिस स्टेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जनरल इंट्रोडक्शन विल बी डन, ओके, एंड एट दिस स्टेज 3 to 4 डेज की जनरल डिस्कशन अलाउड होती है। कितनी होती है? 3 to 4 डेज में हम ये कर लेते हैं कि उसके आगे हम डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन नहीं करेंगे। सर ये कौन मुझे रोकेगा, मैं करने वाला हूं। ओके, नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते। ये रूल 130 ऑफ आरओपी सीओबी ऑफ व्हाट इज आरओपी सीओबी? व्हाट इज आरओपी सीओबी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में लिखा है। क्या लिखा है? कि कोई भी बजट पर डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर कितने टाइम आप जनरल डिस्कशन अलाउड है? इसको वर्ड क्या लिखोगे आप? इसको वर्ड यूज करोगे जनरल डिस्कशन। क्या वर्ड यूज कर रहे हो? जनरल डिस्कशन। तो हम इसको अभी फाइनली करते हैं। सर क्या किया आपने? आपने किया, ओके, कविता, everyone follow this, okay? So first stage, introduction stage. Minister of Finance gives general introduction of budget. It will go on for 3 to 4 days. This is called as stage of general discussion. क्या बोलते हैं इसको? Stage of general discussion. So no detailed debate and discussion is allowed. Yes, according to Rule 130 of ROPCOB. Are you understanding? Very good, sir. Political criticism is allowed? Yes. Okay, political criticism is absolutely allowed. Now, very, very dangerous now. What is happening? Now, moment of truth, my friends. Minister of Finance Lok Sabha में general introduction करेंगे और फिर he will go to the Rajya Sabha also. What? Yes. He will go to the Rajya Sabha also. Okay. And he will again make an introduction. Okay. He will make an introduction which allows general discussion. क्या बोलते हैं इसको? You are allowing general discussion in the Rajya Sabha. Question आएगा, my friends. Please understand. Rajya Sabha has the power to have general discussion on the budget also. Are you understanding? Okay. At the end of this process, at the end of this, the Minister of Finance will give a general statement regarding, ध्यान से सुनो, एक general statement, एक ending statement दे देंगे of his budgetary proposals. मैंने क्या बोला? क्या दे रहे ये? Budgetary proposals. Please understand. अगर तुमने कभी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बजट सुना है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गिव्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ बजट स्पीच, और वो बजट स्पीच में हमेशा वो वर्ड यूज करते हैं आई प्रपोज। ओके, इन अदर वर्ड्स दिस इज नॉट द लॉ। अभी ये सिर्फ प्रपोज हुआ है, इट इज अ बजटरी प्रपोजल। बात समझ में आया या नहीं? एवरीवन इज क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? आस्क मी एनीथिंग। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। All done? Very good. अब सुनो, अब सर अजीब बात होगी। क्या होगा सर? अब आपने लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जनरल डिस्कशन अलाउ कर दिया। राज्यसभा में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया एंड जनरल डिस्कशन अलाउ कर दिया। अब क्या होगा? अब कुछ अजीब बात हुआ। मेरा थोड़ा सा यूज करना, जस्ट यूज योर ब्रेन है। ओके, ये बजट प्रिपेयर किसने किया? ये बजट प्रिपेयर किया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने। फाइनलाइज किसने किया? फाइनलाइज किया सर कैबिनेट ने। यस, एंड हु कॉजेस द लेइंग डाउन ऑफ दिस? द कॉजिंग ऑफ लेइंग डाउन ऑफ दिस इज द प्रेसिडेंट। यस और नो? सो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रिपेयर किया, कैबिनेट दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ने फाइनलाइज किया, एंड कॉजेस द लेइंग डाउन ऑफ दिस हैज बीन डन बाय द प्रेसिडेंट। सर ये बड़ा अजीब सी बात लग रही है। ये एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव। यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर हमारा तो कुछ अलग ही रूल था ना। हमारा रूल था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यस और नो माय फ्रेंड्स? बात समझ में आया या नहीं? अब at the stage of after introduction and general discussion, you will now suspend the budget session. मैंने क्या बोला? You will suspend the budget session. सर क्यों कर रहे हो budget session suspend?
बिकॉज हमको करना है लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। क्या करना है मैंने, बोलो हमने क्या करना है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी करनी है। किस चीज की, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी करनी है ऑफ बजटरी प्रपोजल्स। लिखते जाओ बड़ा बड़ा इसको, मैंने क्या बोला, यू हैव टू डू लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी ऑफ बजटरी प्रपोजल्स। मतलब सर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब ऑर्डिनरी बिल किया था तो मैंने कहा था हम लोग जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली बिल को उठाकर पार्लियामेंट में फेंक देते, हम पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाते। यस और नो एवरीवन? नाउ वो पार्लियामेंट्री कमिटीज मैंडेटरी नहीं है, ओके जो ऑर्डिनरी बिल में थी, दोस पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट मैंडेटरी। हाउएवर this legislative scrutiny starting from the budget of 1993 हम लोगों ने मैंडेटरी बना दिया है, what are called as DRSCs। क्या बोलते हैं इसको, DRSCs। ध्यान से समझना, आ जाएगा तुम्हें, ओके। DRSCs का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, बोलते हो जाओ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देखो मेरी बात फिर समझने की कोशिश करो तब तुम्हें समझ आ रहा है, ओके। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बात बताई थी कि यार आम तौर पे तो लड़ाई झगड़ा इस बात का है कि बीजेपी ठीक है कि कांग्रेस ठीक है, ओके। तो ओपन हाउस में तो यही लड़ाई खत्म नहीं होती, ओके, कि रूलिंग पार्टी है कि ऑपोजिशन है। मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, ओके, आई एम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। आई रियली लाइक द पॉलिसी ऑफ बीजेपी, आई रियली लाइक द पॉलिसी ऑफ द बीजेपी, राइट। लेकिन ओके, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। वेरी गुड नैना, यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ टेंशन ऑफ विप। लेकिन दिस सेम कांग्रेस पर्सन when he becomes a member of a parliamentary committee, you're understanding, I am free to speak, I am free to speak, मुझे कोई टेंशन नहीं है विप की। Are you understanding why? Because I am now functioning as a merely as a legislator। इसीलिए ये वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। क्या बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। ये सबको समझ में आया, ये आएगा अभी धीरे धीरे, पर समझने की कोशिश करो, ओके। तो सर अभी तक तो जो कुछ भी किया है, ओके, जो कुछ भी किया है वो एग्जीक्यूटिव ने किया है। पहले हम इसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कराएंगे। किसको करवा रहे हो सर? सर हम सिर्फ बजटरी प्रपोजल्स को करवा रहे हैं। अभी ये फाइनल लॉ नहीं बन रहा है, दिस इज नॉट द फाइनल लॉ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? नाउ होल्ड ऑन, ओके, कीप योर कंसंट्रेशन है। सर पहले हमें बताओ कि डीआरएससीज होते क्या है? बेटा डीआरएससीज आर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जिसमें हमेशा you will see that you will always have members both from the Lok Sabha as well as from the Rajya Sabha। 21 members आएंगे लोकसभा से, राज्यसभा से आएंगे 10 members। तो टोटल members होंगे हर कमिटी में, ओके, 31 members होंगे। कितने members होंगे? 31। सर ये कहां से आ रहे हैं? सर ये लोकसभा के members में से आ रहे हैं by single proportional representation and single transferable vote। क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आमतौर पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ है इन द लोकसभा, प्रोपोर्शनेटली उतने ही मेंबर्स वो लोग डीआरएससी में से भेजेगा। सिमिलरली राज्यसभा विल आल्सो सेंडेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। और हमारे हर डीआरएससी में 31 मेंबर्स होंगे, 21 कमिंग फ्रॉम द लोकसभा, 10 कमिंग फ्रॉम द राज्यसभा। सर इसमें ऑपोजिशन भी होगा? एब्सोल्युटली। बीजेपी का भी होगा? एब्सोल्युटली, ओके, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। सर कितनी ऐसी कमिटीज है? बेटा हमने ओरिजिनली बनाए थे 17, ओके, लेकिन 2004 में हमने 7 और ऐड कर दिए। तो आज की डेट में हमारे पास 24 सच डीआरएससीज बनते हैं। कितने बनते हैं? 24 डीआरएससीज। तो अगर तुमने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो पिछले मंथ हमारे पार्लियामेंट ने ये डीआरएससीज बनाने स्टार्ट कर दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमारे डीआरएससीज का इलेक्शन हो चुका है, हमारे नेक्स्ट ईयर के डीआरएससीज बन चुके हैं इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? बच्चे समझ में आ रहा है? ओके। अब इनका चेयरमैन भी बनेंगे, हाँ चेयरमैन भी बनेंगे। 16 ऑफ दीज कमिटीज, इन 24 में से 16 ऑफ दीज कमिटीज, ओके, लोकसभा मेंबर्स से बनेंगे, ओके, एंड 8 कमिटीज, ओके, के चेयरमैन राज्यसभा के होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? Everyone has understood? Okay. Kavita, out of the 24 committees, okay, Vikrant, you're disturbing the class unnecessarily by asking crazy doubts. Okay, kindly let me finish the topic and then ask me any doubt if there is anything left. Okay, don't show off, please. Okay. Now,
So 24 DRSCs are those, right? Out of the 24 DRSCs, 16 of these DRSCs will have Lok Sabha members as the chairman, and 8 will be such who will have the speaker coming, the chairman coming from the Rajya Sabha. Are you understanding? So in other words, we are having a fair mixture. तो सर इनका काम क्या है? Now see, it's a very important thing. Remember हमारे पास 107 demand of grants थे? Yes or no? Now 107 demand of grants, right? 107 demand of grants एक साथ scrutinize करना नामुमकिन हो जाता है. So what will we have? We will have a DRSC. For example, you can have a DRSC of agriculture. You can have a DRSC of infrastructure. You can have DRSC of minerals and so on and so forth. Okay, technology and so on and so forth. So all the demand of grants, जो directly या indirectly agriculture से related होता है. Okay, so Ministry of Agriculture से आ गया, Ministry of Irrigation से आ गया, Ministry of Fertilizer से आ गया. ये सारे budgetary proposal हम इस DRSC को भेज देंगे. किसको भेज देंगे? DRSC of Agriculture. बात समझ में आया या नहीं? Everyone has understood or not? Okay. उसी तरह से infrastructure related. Okay. Okay. उससे infrastructure related ये सारे के सारे हम इस DRSC को भेज देंगे. Okay. Education related will be sent to this DRSC so that the 107 demand of grants are somehow distributed to all the different DRSCs so that they can do legislative scrutiny. क्या है सर ये legislative scrutiny? This legislative scrutiny is nothing else but debate and discussion on the budgetary proposal. क्या sir? Yes, they are debate and discussion on the budgetary proposal. Are you understanding? Friends, सबको समझ में आ गया? Okay. Sir, ये क्या debate discussion करने वाले? My friends, बड़ा important problem है. Problem ये है. Suppose this is a ministry. Okay, मैं इसको ministry number 1 बोलता हूँ. This is ministry number 2. This is ministry number 3. This is ministry 4 and ministry 5. Now please understand this. Okay, I am the minister of finance. Okay, मेरे पास total amount of money is 10 lakh crores. Okay, which I have to distribute into ministry 1, 2, 3, 4 and 5. Are you understanding? Ministry 1 बोलता है सर हमको 5 लाख करोड़ दे दो. Okay, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमको 500 राफेल फाइटर प्लेन्स चाहिए. Okay, मिनिस्ट्री नंबर 2 बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, बोलते सर ऐसा करो हमको 2 लाख करोड़ दे दो. Okay, मिनिस्ट्री नंबर 3 बोलते हैं हमको 4 लाख करोड़ दे दो. मिनिस्ट्री नंबर 4 बोलता है दैट हमको 1 लाख करोड़ दे दो. ओके, और ये बोलता है 2 लाख करोड़ से दो. तो ये टोटल तो हो गया 5 + 2 7 + 4 11 + 1 12 + 2 14. भाई मेरे पास तो 10 लाख करोड़ ही है. सो व्हाट हैव आई डन? ओके, आई हैव टू फिट द demands into total availability. Yes or no? So I have done it. Who has done it? I have done it. So the executive has done it. So executive ने बोला ना 5 लाख करोड़ नहीं देंगे हम इसको. पागल है क्या? 5 लाख करोड़ नहीं होगा, इसको तो 3 लाख करोड़ होना चाहिए. ओके, और इसको 3 लाख करोड़ कर दो. तो 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9, इसको भी 1 कर दो और 10 बराबर हो गया. So now the budgetary proposal says 3 + 2 + 3 + 1 + 2. Now सबको समझ में आ रहा है? Everyone has understood? Friends, everyone is understanding? Yes, very good. Now अब ये ज्यादा हो गई, ये 1 होना चाहिए. Okay, now I gave it. Okay, now the DRSC sees this and DRSC is now scrutinizing this. Now the legislative scrutiny happens. Now the DRSC, please understand मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो. Right now the DRSC will work by consensus. Work by, ध्यान से सुनना भाई, कोई भी गलती मत करना. By consensus, mutual consensus करेंगे और mutual consensus से DRSC बोलेगा नहीं यार तुम एग्रीकल्चर वाले बाद में ले लेना यार, इस टाइम पर 1 लाख करोड़ ना प्लीज डिफेंस वालों को दे दो. पाकिस्तान बहुत टेंशन दे रहा है, चाइना बहुत टेंशन दे रहा है. यूर अंडरस्टैंडिंग? तुम अगर 1 लाख करोड़ यहां पर दे दोगे ना, ओके, तो इनके पास 3 + 1 हो जाएगा. ओके, और ये तुम 2 मत लो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, सारा ओलंपिक इसी साल जीतोगे क्या? ओके, एक कम करो, एक इसको दे दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू अंडरस्टैंड? इट इज म्यूचुअली बाय कंसेंसस. ओके, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसको समझो. इट इज ओनली बाय कंसेंसस. राइट, वो अपनी प्रपोजिशंस की रिपोर्ट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? वो रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने तो प्रपोज किया था. वी हैड प्रपोज्ड दैट 3 should become 1 and 2 should become 1 and 3 should become 5.
सर ये प्रपोजल है, इसमें जबरदस्ती नहीं है। नॉट एट ऑल, इट इज ओनली बाय म्यूचुअल कंसेंसस। दिस इज रिटन इन रूल 268 and rule 270 of ROP-COV. Are you understanding what am I saying? That the DRSC will function only by mutual consensus. बात समझ में आया या नहीं? मतलब सर, it is not binding on the executive, at all not binding, but this report will be sent to the parliament. Are you understanding? तुम्हें याद है पार्लियामेंट्री कमेटी की भी रिपोर्ट was not binding on you, but yes, the parliament will get to know कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी की रिपोर्ट में क्या आया था। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको याद रखना। ओके, दिस इज ओनली बाय म्यूचुअल कंसेंसस। बात समझ में आया या नहीं? फ्रेंड्स, एवरीवन हैज अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड सर, अब तो हो गया। हाँ सर, अब आपने एक बात बताई थी कि आपने सस्पेंड कर दिया था बजट सेशन। हाँ सर, ये क्यों सस्पेंड किया था? बिकॉज ये लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। तो बैकग्राउंड में क्या काम होने वाला क्या है? बैकग्राउंड में काम हो रहा है DRSC का। सो DRSC इज गिवन 3 weeks टू डू इट्स जॉब। कितना टाइम मिलता है? 3 weeks, राइट? तो यूजुअली सस्पेंशन ऑफ बजट कितने टाइम का होता है? यूजुअली सस्पेंशन ऑफ बजट सेशन होता है फॉर 3 weeks. यू हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ओके, दैट इज ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। तो आपको मैं समझ में आया सस्पेंड क्यों करना पड़ा? सस्पेंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस दौरान क्या होगा? DRSC करेगा लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। बात समझ में आई या नहीं? फ्रेंड्स, सबको समझ में आ गया या नहीं? राइट, चलो वेरी गुड सर। अब क्या करना सर? हो गया, बजट बन गया? अरे नहीं सर, अभी कैसे बजट बनेगा, अभी तो गड़बड़ बाकी है। अच्छा, अब क्या होगा? चलो फाइनली लेट्स हैव दिस एंटायर थिंग। ओके, सो मैंने प्रिपेयर किया बजट। आई एम अगेन रिपीटिंग द एंटायर स्टोरी। सो आई प्रिपेयर्ड द बजट, I sent it to the cabinet finalized it. Okay, एक बार recap करते जाओ। Then I sent it to the Secretary General of the Lok Sabha Secretariat. Okay, he went to the president and the speaker coordinated. Then we coordinated the date. Then we had the prior recommendation of the president. Then I went to the Lok Sabha. I went for an introduction and general discussion. Rajya Sabha, introduction plus general discussion. Uske baad we suspended the budget session for 3 weeks, during which time the DRSC did what is called as legislative scrutiny. yahan tak picture 100% clear honi chahiye. Yes or no? Yes or no? Absolutely. Okay. और बेटा ये जो रेड कलर का पेन खत्म, तो राज्यसभा का भी काम खत्म। मतलब सर, राज्यसभा इंट्रोडक्शन में थी, राज्यसभा डिस्कशन में थी, and राज्यसभा के some members were in DRSC also. Yes or no? Yes or no? Right? अब राज्यसभा बेटा तुम चले जाओ। ओके, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो राज्यसभा के 3 ही रोल्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द DRSC। लोग मिस कर जाते हैं DRSC वाला पार्ट। उनको पहले तो 90% लोगों को ये नहीं मालूम होता कि जनरल डिस्कशन अलाउड होती है, लोगों को मालूम ही नहीं होता इंट्रोडक्शन होते। तो बट जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी गलती कर बैठते हैं। याद रखना 3 पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्कशन एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ DRSC। ये भूलना मत। ओके, ट्रैप क्वेश्चन है ये। ओके, और तुम लोग लास्ट मोमेंट पे भी नहीं समझ में आता लोगों को कि हमने गलती क्या कर दी थी। ओके, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तो मुड़ गए। ओके, अब सुनो, अब क्या होगा सर? अरे मुबारक हो, तुम्हारा सस्पेंशन ऑफ द बजट सेशन खत्म। अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास है रिपोर्ट ऑफ द DRSC। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? एवरीवन इज क्लियर? वेरी गुड सर। तो हम बजट सेशन में आते हैं। नाउ मैं जितने भी बजटरी डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स है वो मैं सारे के सारे स्पीकर के पास छोड़ देता हूं। स्पीकर साहब, ये मेरा बजटरी मोशन है। यस और नो? What is a motion? What is a motion? Motion is a formal proposal. बेटा कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो? It is a formal proposal. Okay. Demand of grant क्या है? Formal proposal है। Motion क्या है? Formal proposal है। I propose, I propose, I propose. Yes or no? Very good. Usually speaker इनमें से 5 to 6 demand of grants पर debate discussion allow करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्पीकर करेगा मोशन को इंट्रोडक्शन, डिबेट एंड डिस्कशन। वेरी गुड। तो स्पीकर साहब, ये है स्पीकर साहब। ओके, ये स्पीकर।
नाउ द स्पीकर साहब पहला मोशन उठाते हैं, फर्स्ट प्रपोजल, ओके, ये बोलते हैं डियर पार्लियामेंट्री, डियर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो हमारा पहला प्रपोजल है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ओके, वो है द डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मांगे है 3 लाख करोड़ रुपए, ओके, सो दिस इज द डिमांड ऑफ ग्रांट, ध्यान से सुनते जाना, of the Minister of Defense. Okay, so I am introducing this motion. Say the word. What am I doing? I am introducing this motion. Okay, very good. Okay, अचानक, okay, अचानक तुम्हें जोर से आवाज आएगी, okay, तुम्हें आएगा आवाज राहुल गांधी की, okay, please understand, okay, don't make it a political issue, I'm just giving an example, okay, some opposition member, राहुल गांधी साहब खड़े होंगे, राहुल गांधी साहब बोलेंगे, Madam Honorable Speaker, I don't accept this introduction, I introduce a cut motion. मैंने क्या बोला? I introduce a cut motion. क्या motion? Cut motion. Okay. सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या वर्ड यूज किया? I introduce a cut motion. Okay. Sir, what is a cut motion? Cut motion का पर्पस होता है to reduce the demand of grant. क्या है cut motion का पर्पस? To reduce the demand of grant. Okay. Very good. किसने मूव किया? Opposition ने. Okay. कौन है? राहुल गांधी साहब ने मूव किया, आई इंट्रोड्यूस अ कट मोशन। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड। तो मैडम ऑनरेबल स्पीकर्स विल स्टैंड अप एंड राहुल गांधी विल स्टैंड अप एंड से आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कट मोशन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सो ये है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का डिमांड ऑफ ग्रांट, राइट? दिस इज 3 लाख करोड़। ओके, ये है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का। किसने मूव किया? राहुल गांधी ने मूव किया है व्हाट इज कॉल्ड एज अ कट मोशन। तो राहुल गांधी साहब मूव करते हैं कट मोशन। तो मैडम ऑनरेबल स्पीकर विल से, मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट काइंड ऑफ कट मोशन आर यू मूविंग? ओके, राहुल गांधी विल से, मैडम, आई वांट टू मूव अ पॉलिसी कट मोशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया? पॉलिसी कट मोशन। ओके, नाउ व्हाट इज अ कट मोशन? पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है आई वांट द पॉलिसी टू बी कंप्लीटली रिजेक्टेड। मैंने क्या बोला? रिजेक्ट द एंटायर पॉलिसी। ओके, अरे रिजेक्ट द एंटायर पॉलिसी का मतलब है मैडम ऑनरेबल स्पीकर, इनको एक पैसा नहीं चाहिए। 3 लाख करोड़ का ये जो रफेल डील है ना, ये वेस्ट है। ओके, आई वांट देम टू बी गिवन नथिंग, ये पॉलिसी ही रिजेक्ट कर लो। ओके, नाउ तो मैडम ऑनरेबल स्पीकर से कोई बात नहीं, यू इंट्रोड्यूस दिस। ओके, फिर हम इस पर करेंगे डिबेट, फिर हम इस पर करेंगे डिस्कशन, और फिर हम इस मोशन पे करेंगे वोटिंग। यस और नो? वोटिंग में अगर यस बिकम्स मोर देन नोस, कांग्रेचुलेशन राहुल गांधी साहब, आपका कट मोशन पास हो गया, मुबारक हो। ओके, और पॉलिसी कट मोशन पास हो गया तो 3 लाख करोड़ रुपीस में से 3 लाख करोड़ रुपीस माइनस हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज द एंटायर पॉलिसी विल बी रिजेक्टेड। बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? 3 लाख करोड़ रुपीस जो देने वाले थे, अब हम तुम में से उसमें से 3 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे और हम देंगे इनको ₹1। सर ये आपका मैथ्स हमें कहीं समझ में नहीं आया बेटा, पार्लियामेंट में ऐसा ही मैथ्स होता है। ओके, एट द 3 लाख माइनस 3 लाख इन पार्लियामेंट बिकम्स ₹1। हम किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एट द एंड ऑफ पॉलिसी कट मोशन, राइट, द फाइनल ग्रांट इज हाउ मच? द फाइनल ग्रांट इज ₹1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड? यस यस, यू कैन यूज इट। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो ये हो गया पॉलिसी कट मोशन। ओके सर, सर कभी कभी ये कट मोशन नहीं होगा, सो फिर कौन सा कट मोशन होगा? सो कभी कभी द कट मोशन इज डिफरेंट। ओके, सो लेट्स हैव दिस अगेन, राइट? सो लेट अस, सो द कट मोशन कैन बी, ओके, 3 लाख करोड़ रुपीस। राहुल गांधी कैन स्टैंड अप एंड सेड, ओके, राहुल गांधी कैन स्टैंड अप एंड से, मैडम ये 3 लाख करोड़ बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच। ओके, रिड्यूस इट। ओके, डोंट मेक इट 0 बट रिड्यूस इट। I am introducing economy cut motion. What am I moving? Economy cut motion. Okay. मतलब क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी saying कि मैडम 3 लाख करोड़ मत दो, reduce it by a fixed amount. Reduce by a fixed amount. Okay. He can propose any amount here. Suppose he says he'll reduce it by 1 lakh crores. So again, the motion will be introduced, debated, discussed, and voted. If yeses are more than no's, congratulations. Okay, you have passed the cut motion. Now, what will be the grant? 3 lakh crores minus 1 lakh crore. Final grant is 2 lakh crore. Are you understanding? बच्चा सबको समझ में आया या नहीं? Yes or no? Right?
वेरी गुड, सब लोग लिखते जा रहे हैं, ओके, ऑलराइट, सबने लिखते जा रहे हो ना। इकोनॉमिक कट मोशन रिड्यूस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, कभी कभी ये भी नहीं कट मोशन होता। सो 3 लाख करोड़ is the demand of grant. Okay, Rahul Gandhi can move. Okay, Rahul Gandhi can move what is called as a token cut motion. What is this called as? Token cut motion. So Rahul Gandhi sir, why are you moving token cut motion? Because I want you to punish them. Okay, there should be a penalty against Minister of Defense. बोले why? ये मैडम ऑनरेबल स्पीकर, लास्ट ईयर भी इन लोगों ने 3 लाख करोड़ लिए थे, लास्ट ईयर आल्सो दे टुक 3 लाख करोड़, ओके, एक प्लेन नहीं आया मैडम, ओके, ये सारा मनी वेस्ट हो गया, दिस कुड हैव बीन बेटर पुट टू यूज टू फार्मर्स को दे सकते थे हम लोग, ओके, इन्होंने 3 लाख करोड़ का एक भी यूज नहीं किया, इनको पनिश करो, ओके। तो स्पीकर बोलेगा रुको यार, पनिश नहीं करेंगे, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, वोट करेंगे, यस मोर देन नोस, तो हम आपकी बात मानेंगे। तो बोलेंगे हो गया ना, पास हो गया, यस मोर देन नोस, तो 3 लाख करोड़ में से माइनस करेंगे 100 रुपीज, तो हमारे कितना पेनल्टी देते हैं हम लोग पार्लियामेंट में, 100 रुपीज की, ओके, और जो भी इसका फाइनल आएगा वो फाइनल ग्रांट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? 100 रुपीज की पेनल्टी एंड दैट्स इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? और ओके एवरीवन अदर? सो कितने टाइप के कट मोशंस हो गए हमारे पास? हो गए 3 तरह के कट मोशंस। नंबर 1 बोलते हो जाओ। नंबर 1 हमारे पास है इज कॉल्ड एज पॉलिसी कट मोशन, फिर हमारे पास है इकोनॉमिक कट मोशन, और फिर हमारे पास है टोकन कट मोशन। ये सुनो, ये है डिमांड ऑफ ग्रांट, ओके, ये है डिमांड ऑफ ग्रांट, ये है डिमांड ऑफ ग्रांट, ओके। इसमें पूरी की पूरी पॉलिसी रिजेक्ट होती है, एट द एंड ऑफ दिस ₹1 दिया जाता है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट से माइनस कर देते हैं, ओके, और इसमें 100 रुपीज से माइनस कर देते हैं। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, लेकिन सर ट्रेजेडी तो कुछ और ही है सर, आप ये तो बता ही नहीं रहे हो। मैंने बोला क्या नहीं बता रहा बेटा? सर ये इसमें से कौन सा कट मोशन पास होने वाला है सर मोदी गवर्नमेंट में? ओके, एक भी कट मोशन नहीं पास होने वाला। व्हाई? क्योंकि इसको पहले इंट्रोड्यूस करना है, फिर डिबेट करना है, डिस्कस करना है, वोट करना है। मेजोरिटी तो मोदी गवर्नमेंट की है सर, ओके, कोई भी मोशन पास नहीं होने वाला। व्हाई? बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी, यस और नो? तो राहुल गांधी आपके सारे कट मोशन उड़ जाने वाले, यस और नो? फिर भी राहुल गांधी ये मूव कर रहा है, अरे काय को? Because he wants to do what is called as political criticism. Say the word. क्या कर रहे हैं इसको? We want the world to know कि मैं खुश नहीं था. So cut motions are done for political criticism. Are you understanding? बात समझ में आया my friend? तो सर सारे कट मोशंस फेल होंगे, 100% फेल होने वाले। बट सर अगर पास हो गए तो, अगर पास हो गए ना, तो मुझे पता चल गया कि मोदी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। कहां नहीं है? लोकसभा में नहीं है सर, लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। मुबारक हो मोदी जी, रिजाइन कर दो। यस, हमें कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की जरूरत नहीं, यू विल हैव टू रिजाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वोट ऑफ थैंक्स का बात अलग था, यहां पर हमको डायरेक्टली तुमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया या नहीं my friends? Everyone has understood this or not? Okay, so a passing of cut motion is indicating that the government does not have majority and leads to the falling of the government. Are you understanding? Failure of budget is failure of government. Failure of budget is failure of government. बात समझ में आया या नहीं? बात समझ में आया या नहीं? Everyone is understanding my friends? Okay, अभी तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। कुछ है तो मुझे पूछ लो। Everyone? All right. सर अब क्या होगा? अब फाइनल स्टेप होगा। क्या होगा सर बताओ? अब स्पीकर साहब ने एक उठाया, ओके, स्पीकर साहब ने एक मोशन उठाया, बजटरी प्रपोजल उठाया, डिमांड ऑफ ग्रांट उठाया, राइट? एंड नाउ द डिमांड ऑफ ग्रांट को बोलेंगे कट मोशन। तो राहुल गांधी आया, राहुल गांधी ने एक कट मोशन प्रपोज किया। वेरी गुड। क्या होगा इसका? इंट्रोड्यूस होगा, मोशन होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, ओके। हारोगे जीतोगे ऑपोजिशन इसको हारेगा, ओके, ऑपोजिशन विल लूज, ओके। फिर सेकंड, तो ये एक और उठाया, फिर सेकंड आया, अब किसी और ने कोई और कट मोशन प्रपोज किया, अगेन इट इज डिबेटेड, डिस्कस्ड एंड वोटेड, अगेन ऑपोजिशन लूज, ओके। ऐसे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5वें तक पार्लियामेंट में जितना टाइम पास करना था हो चुका, ओके, सबको मालूम है, हो गया, जितना होना था हो गया, ऑलराइट। नाउ अब टोटल कितने डिमांड ऑफ ग्रांट से? टोटल कितने डिमांड ऑफ ग्रांट से? 107, मैक्सिमम और 107। अब कितने डिस्कस हो गए? 5। कितने बच गए? 102। अब स्पीकर यूजुअली ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन,
लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन पे यूजुअली एट 5 PM, शाम को 5 बजे, ओके 5 PM यूजुअली स्पीकर साहब बाकी 102 डिमांड ऑफ ग्रांट्स उठाते, ओके, और 102 डिमांड ऑफ ग्रांट्स उठाते होते, ओके दीज आर द रिमेनिंग 102 डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ओके, कोई और कट मोशन है क्या कि तंग आ गए क्या? बोलेंगे सब लोग ऑपोजिशन बोलेंगे नहीं नहीं सर बहुत हो गया, जितना होना था हो गया, ओके। स्पीकर बोलेगा इसको कोई डिबेट की जरूरत नहीं, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, आई कंसिडर दिस एज पास्ट। अगर तुम्हें याद है ऑर्डिनरी बिल में जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं क्यूलोटी, यस और नो। क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज पास बाय, मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज पास बाय क्यूलोटी, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। मेजॉरिटी लोगों को मालूम नहीं क्यूलोटी क्या होता है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज पास बाय व्हिच मेथड? गिलोटिन मेथड। तो मैंने तुम्हें तब बताया था गिलोटिन मेथड इज usually discouraged in ordinary bill, okay, but this is the way to pass your budget. Are you understanding this absolutely clear or not? Absolutely clear? All good? Vikrant sir is asking, sir how then parliament do control over executive? मुझे लगता है अब तो आंसर आ गया होगा, ये पहले का लग रहा है मुझे। अनुपम जी ने पूछा है पॉलिसी कट मोशन पास द गवर्नमेंट इज लॉस्ट मेजॉरिटी। हाँ मैंने शो कर दिया, नॉट ओनली पॉलिसी कट मोशन, एनी कट मोशन इज पास मतलब द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? ओके अब तुम्हें समझ में आ गया माय फ्रेंड्स, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन हार्ड, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, बीच बीच में से पूछ लो फायदा नहीं होने वाला। ऑलराइट नाउ अंडरस्टैंड। अरे सर अभी तो खत्म हो गया सर, बजट हो गया। अरे कहां से बजट खत्म हो गया मेरे बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ मतलब अब सर हमने कर दिया इंट्रोडक्शन, फिर हमने किया जनरल डिस्कशन, अब मैं यहां से स्टार्ट करूं, ओके। फिर हमने किया डीआरएससी की लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, ओके, हमने किया डीआरएससी की लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, और फिर हमने किया वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मैंने क्या बोला, ये जो लास्ट वाला था, मेरी बात याद सुनो, मेरी बात, वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स वो स्टेज था जब हमने कट मोशंस को मूव किया था। सर आपने ये कट मोशंस यहां नहीं मूव किए, नहीं 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 नहीं, ये बिग बोल्ड लेटर्स में लिख लो, नो कट मोशंस आर प्रेजेंटेड एट दिस स्टेज। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स सिर्फ लोकसभा में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके तुम्हें मैंने तब बताया था यहां पर राज्यसभा खत्म, राज्यसभा तुम आराम करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एटलीस्ट इस स्टेज तक नहीं है, ओके। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, प्लीज रिमेंबर नो कट मोशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द डीआरएससी। बात समझ में आया या नहीं? एवरीवन डन? ओके लिखते चले गए, वेरी गुड। वन लास्ट 5 मिनट्स अंडरस्टैंड दिस। सर आप क्या करोगे, वो तो गया बजट। अरे नहीं बेटा बजट कैसे हो गया, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ओके। जब हमने प्रिपेयर किया था तब हमारे पास डिमांड ऑफ ग्रांट्स थे, यस और नो? फिर ओके हमने प्रिपेयर किया, फाइनलाइज किया एंड प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद हमने डीआरएससी की लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कराई, यस और नो? ना मैं इसको ऐसे नाम दे रहा हूं, ओके, सो दीस आर द डिमांड्स, ओके। फिर हमने वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स किया, ओके, और फाइनली हमने वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स खत्म किया। मैं ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यूज कॉमन सेंस। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स और ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स और ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स अलग हो? They may be different from one another. Yes or no? There's a possibility. Plus, they have undergone legislative scrutiny. They have undergone voting on demand of grants. In other words, we have satisfied the rule of executive is responsible to the legislature. Yes or no? Yes or no? अब तो खुश हो तुम लोग, मैंने कर लिया executive is responsible to the legislature. Now, I will prepare another bill. नहीं सर, एक और बिल? हाँ यार एक और बिल। इस बिल में हम फाइनल एंड रिवाइज्ड डिमांड ऑफ ग्रांट्स डालेंगे, नॉट दिस वन, ओके, नॉट दिस वन, बट एट द एंड ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स मैं फाइनल ग्रांट्स डालूंगा, 1 2 3 4 5 ऑल द वे टिल 107। इस बिल को नाम देंगे अप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? अप्रोप्रिएशन बिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस, मतलब से ये एक और बिल हो गया, यस ये एक और बिल हो गया। अब इस बिल को दोबारा मैं, ये लोकसभा में हो रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। अब इस लोकसभा में मैं इसको फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर से इसको डिबेट करूंगा, फिर से डिस्कस करूंगा, फिर से वोटिंग करूंगा,
अगर yeses are more than no's, तो मैं अप्रोप्रिएशन बिल को बना दूंगा अप्रोप्रिएशन एक्ट, अगर ये बाद में पास हुआ तो अभी मैं पास करूंगा अप्रोप्रिएशन बिल। यस और नो फ्रेंड्स, यस और नो, यस और नो। एक्ट अभी नहीं बनेगा बेटा जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा, बट ऑब्वियसली मैं पास करूंगा। यस और नो फ्रेंड्स, हाँ या ना तो बोलो, यस और नो। गुड, ओके। नो 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 नो, तुम सब लोग गलत फंस गए। ओके, इतनी बहस के बाद अब डिबेट की जरूरत क्या है बेटा, डिस्कशन की जरूरत क्या है बेटा? तुमने ये कर तो लिया ऑलरेडी। यस और नो फ्रेंड्स, तुम इतने छोटे से ट्रैप में कैसे आ गए? ये सब कुछ हो तो चुका, इसीलिए तो हमने अप्रोप्रिएशन बिल बनाया था। यस और नो? तो अप्रोप्रिएशन बिल में कभी डिबेट नहीं होती, कभी डिस्कशन नहीं होती, वी जस्ट स्ट्रेट अवे पास दिस बिल। क्वेश्चन आता है, अप्रोप्रिएशन बिल इज द ओनली बिल व्हिच इज नेवर opposed in the Lok Sabha. Why? Because हमारा काम हो गया है, साउंड वोट से पास हो गया। Are you understanding this part? Everyone has understood? फ्रेंड्स, समझ में आया? तो सर यही तो लाइन थी माय फ्रेंड्स, यही तो लाइन थी जो मैंने तुम्हें पावर ऑफ पर्स के टाइम पे याद करवाई थी। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था नो ग्रांट ऑफ फंड्स, नो ग्रांट ऑफ फंड्स from the consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. Word क्या था? Due appropriation by the Lok Sabha. Why? Because appropriation bill पास होने से पहले तुम पैसा नहीं निकाल सकते, उससे पहले वो सिर्फ डिमांड ऑफ ग्रांट है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है खर्चा होना, एक्सपेंडिचर होना। एक्सपेंडिचर कौन अलाउ कर रहा है? लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन, सो लोकसभा नाउ विल पास द अप्रोप्रिएशन बिल। ओके, विल नाउ पास द अप्रोप्रिएशन बिल। जैसे ही लोकसभा अप्रोप्रिएशन बिल पास करेगा तो स्पीकर साहब बोलेगा रुको रुको रुको, बिफोर सेंडिंग इट टू द राज्यसभा, ओके, फॉर एक्सेप्टेंस, अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि बजट को, ओके, द एंटायर बजटरी प्रपोजल को स्पीकर साहब सर्टिफाई करेंगे और उस सर्टिफिकेट पे मारेंगे आर्टिकल 110 का स्टैंप और बोलेंगे कि ये एक मनी बिल है राज्यसभा। ओके, याद रखना। तो राज्यसभा बोलेगी सर क्या याद रखना है? ना सर यही याद रखना कि तुम्हारे पास 14 डेज है, राइट? यू हैव 14 डेज। विद इन 14 डेज या तो यस बोल दो, ओके, या रेकमेंड करो, बट याद रखना एनी चेंजेस, बट दीज recommendations are not binding on the Lok Sabha. तुम या तो हाँ बोलो या बाइंडिंग recommendations करो या ना करो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। At the end of 14 days, it is deemed to have been passed. It is deemed to have been passed. सिर्फ 14 days है। Then I will send it to the president, and the president cannot use veto. He will give the assent, and congratulations, my friends, your budget has been passed. बात समझ में आया या नहीं? Yes or no? Everyone has understood? Absolutely. Yes. 2-3 चीजें हैं जो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, बट आज के लिए तो वोट ऑफ थैंक्स, टैक्स बिल्स वगैरह I'll teach you. Okay, so I'll teach you all those things, right? Please repeat 14 days concept. 14 days is what Rajya Sabha gets either to pass it or suggest recommendations, but those recommendations are not binding. Everyone has understood, my friends? Okay, so just revise this part. जो थोड़ा बहुत part बाकी है, I'll do it tomorrow. Okay, उन parts में अभी मत concentrate करना मेरे हिसाब से, तो just make sure that you revise it exactly the way I have done it. Right? अभी के लिए इसको ऐसा कर दें. Thank you, Ajay. Okay, thank you. God bless. That should be enough for today. Good night.